पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सर, क्या पढ़ा था? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है बहुत डिटेल में हमने पढ़ा था। और दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं, दिल वाले दुल्हनिया ले नहीं रहे, दिल वाले दुल्हनिया दे रहे हैं। और आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं शानदार शानदार वीडियो के साथ, ध्यान से देखेंगे। Hello there, buddy. With a little help from my animated friends, let's find out what organizational structure means. Now meet Nancy. She's the Chief Executive Officer, or CEO, of Awesome Corp, a company with 35 employees. Well, this is Jim. He's the Chief Operating Officer, or COO, of Awesome Corp. He's Nancy's second in command and reports directly to her. Jim oversees a wide variety of areas, including production, sales, and marketing. Mutlu is the Chief Financial Officer, or CFO. Simply put, he's responsible for the financial health of the company. Nancy, Jim, and Mutlu are Awesome Corp's executive team. But Awesome Corp has more employees than just 3. A lot more. Let's take a look at the financial department. And as you remember, Mutlu is the CFO. Now this is his team. Layla is a senior receivables accountant. She manages accounts receivables. That's the money coming into the company from its customers. She makes sure invoices get issued and that Awesome Corp gets paid on time. Well, this is Thomas. He's Layla's peer, meaning that they are likely to receive comparable compensation, and they both report to Mutlu. Thomas's area is slightly different though. Thomas handles accounts payable. That's the money that the company pays to its suppliers and service providers. He also happens to handle the company's taxes. Susan is a procurement specialist. She works with the company's suppliers and partners to make sure the company always has sufficient resources and that service contracts are up to date. She frequently scouts new vendors in order for Awesome Corp to get the best prices. Thomas is her manager. Ahoy, Financial Department! Of course, there are more departments. Together, all these employees from Awesome Corp, decision-making power flows from the top to the bottom, with a greater concentration at the top. All companies are slightly different, but this will give you a solid start. For practice, try sketching out an organizational structure of your company or college. Good luck! हाँ जी दोस्तों, क्या समझ में आई बात? क्या कुछ से देख के समझ में आ रहा है? क्या लोचा है? क्या लोचा है सर? सर ये एक आज का जो टॉपिक है वो यही है सर। ये जर्नली हर कंपनी का क्या कहलाया जाता है? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या कहलाया जाता है? या आप इसे बोल सकते हैं हायरार्की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। और मैनेजमेंट की भाषा में पता क्या बोलते हैं? स्केलर चेन। क्या बोलते हैं भैया? ये मुन्ना मुन्नियों कंपनी की स्केलर चेन है। सबसे पहले देखो ये क्या है? नैन्सी कौन है? सीईओ, जो शुरू में दिखाया। जिम कौन है? चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। मुतलू, मुतलू कौन है? मुतलू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीएफओ। अब नैन्सी किसको ऑर्डर देगी? जिम को और मुतलू को। मुतलू किसको देगा? लैला को। लैला होगी ये, लैला नाम रख दिया इसका। लैला में लैला, ना ये लैला हो गया ना। और मुतलू किसको ऑर्डर देगा? थॉमस को। थॉमस किसे ऑर्डर देगा? सुसेन को, है ना? राइट, बात नहीं करो। ठीक है, इनको ऑर्डर देगा। अच्छा इधर बात करें तो जिम, जिम में ऑर्डर देगा। जिम किसे ऑर्डर देगा? इसको, सेल्स डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। ये इनके नीचे एम्प्लॉय हो गए। यानी कि ऐसी चीजें हमने स्केलर चेन में सीधी डंडे डंडे में हमने पढ़ ली थी कि भैया ए है, ये बी है, ये सी है, ये बॉस हो गया, ये भैया डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया। क्या ये है ना? क्या है? जैसे इसका नाम है स्यूसेन। क्या स्यूसेन सीधा नैन्सी से बात कर सकती है? नहीं कर सकती भैया, क्योंकि हेनरी फ्योल ने क्या बोला? यू मस्ट फॉलो द स्केलर चेन। हाँ, स्यूसेन थॉमस से बात कर सकती है, स्यूसेन मुतलू से ही बात नहीं कर सकती, है ना? राइट। तो ये एक हिरार्की जो स्टेप बाय स्टेप में चलेगा। या इंडिया की भाषा में देखो तो भैया नैन्सी होगी, मान लो फॉर एग्जांपल रिलायंस में अंबानी, मुकेश अंबानी टॉप के हो गए ना। ये उनके नीचे हो गया भाई कोई बंदा, ये वर्कर हो गया नोएडा में काम करने वाला। तो नोएडा में काम करने वाला वर्कर या उनकी हिरार्की में काम करने वाला सीधा अंबानी से बात नहीं करता ना, क्योंकि हेनरी फ्योल ने क्या बोला? डायरेक्ट बात करोगे तो अंबानी मेन काम कैसे करेंगे कंपनी को एक्सपेंड करने का? तो हर किसी से नहीं मिल सकते, है कि नहीं बात? स्केलर चेन का एक नया नाम रखा, स्केलर चेन।
जो चैप्टर नंबर 2 में स्केलर चेन थी उसका प्यार से एक नया नाम रखा, और इस प्यार को पता है क्या नाम दिया? ये बोलो क्या लिखा है सर? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो आज का टॉपिक भी ये सर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को आप क्या बोल सकते हैं? लिख के पहले हिंदी में लिखवाता हूं तुम्हें। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जिसे आप चार्ट भी बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट भी हो जाता है। चार्ट कह दो, स्केलर चेन कह दो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कह दो, या कह दो नेटवर्क। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक नेटवर्क है। क्या है मुन्ना? नेटवर्क है। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज अ चार्ट और नेटवर्क which define किसकी क्या जॉब है, एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ने दूसरी बात क्या बताई कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करता है। तो अगर मैं आसान सी भाषा में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिख के आऊंगा, या मुझे सीक्रेट वर्ड से पता लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या, तो मैं बोलूंगा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक चार्ट और नेटवर्क है जो डिफाइन कर देता है कि किसकी क्या अथॉरिटी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि किसकी क्या अथॉरिटी और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं बात? राइट। अब जैसे कि नोट कर ली इतनी बात। अब जैसे देखो, अगर मैं कहूं एग्जाम में कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है, तो आप एग्जाम में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। देखना जरा, सर ये हो गया भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे हो गया सीईओ। अब ये अगर तुम ये ध्यान से देखो, तो प्रोडक्शन मैनेजर है, इसके नीचे कौन आया? फैक्ट्री मैनेजर, स्टोर मैनेजर, इसके नीचे कौन आया? फोरमैन, फोरमैन के नीचे कौन आ जाएगी? लेबर। मुझे बताओ ये क्या चीज बताई गई? ये जो पूरा का पूरा एक हायरार्की है, इसे क्या बोलते हो? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में क्या डिफाइन किया गया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर ये मुझे बता दी गई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर चैप्टर 2 की यादें ताजा करें, जिसमें अपने हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल ने सीखा था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल सीखा था ना। अथॉरिटी मतलब जूनियर को पावर दे देना कि वो अपने जूनियर से काम करा सके, यानी पावर टू टेक डिसीजन इज अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब बताओ, जिम्मेदारी, कि जिसको पावर दी गई है उसकी क्या होनी चाहिए? सर जिसको पावर दी गई है उसकी क्या होनी चाहिए? जिसको पावर दी गई है उसकी जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। यानी इफ यू आर गेटिंग द पावर यू मस्ट हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसका डायलॉग मैंने तुम्हें याद कराया था सब कई दिन पहले? स्पाइडरमैन का। स्पाइडरमैन क्या बोलता है पिक्चर में? बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है, यानी कि वो इंग्लिश में बोलता है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्पाइडरमैन पिक्चर का डायलॉग है, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहली हेनरी फ्योल लिख गए। अब बताओ प्रोडक्शन मैनेजर ने किसको अथॉरिटी दे दी? फैक्ट्री मैनेजर को। तो जिसको अथॉरिटी दी उस ऑटोमेटिकली उसके सर पे क्या आ गई? जिम्मेदारी काम करने की। फैक्ट्री मैनेजर ने किसको अथॉरिटी दे दी? पावर। अब उसको पावर दे दी तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली क्या चलेगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ जाती है। जिसको तुमने पावर दे दी, जिसको तुमने पावर दे दी, उसकी ऑटोमेटिकली क्या बन गई? रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई। अगर पिताजी ने माताजी ने तुम्हें पावर दे दी कि उनकी अलमारी में से पैसे निकाल लेना, तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्स साफ मत कर देना उनका, है कि नहीं बात? राइट। सही इस्तेमाल करना आपकी क्या बन गई? ऑटोमेटिकली जिम्मेदारी बन गई। इसलिए हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद होगी बात? क्यों डेफिनेशन लिखी गई? ये है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। दिस ऑर्गेनाइजेशन चार्ट या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑलवेज डिफाइन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नोट कर लिया? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो क्या करना पड़ेगा? सर बनाना पड़ेगा, या पिक ले लो जल्दी से, फिर नोट कर लेना घर जाके, है ना? राइट। इस तरह का चार्ट आपको एग्जाम में बनाना है अगर ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आए डायरेक्ट। ठीक है, अभी और भी चार्ट दिखाऊंगा, चिंता मत करो, और भी आपको बनवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब आती है बात सर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और क्या होता है सर। अब इसके बेसिक्स पे आते हैं सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ना,
क्या लिखा है पढ़ना जरा। पहली बात, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नीड फॉर एडुकेट ऑर्गेनाइजेशन फेल्ट बाय एंटरप्राइज व्हेनेवर ग्रोथ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। अगर कोई भी कंपनी बड़ी होती जा रही है तो उसे किसकी जरूरत है सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत है, जो भी हमने डायग्राम बनाया। इसका मतलब यह हुआ अगर कोई कंपनी बहुत छोटी है, छोटी बोलते सर, एक कंपनी वन मैन कंपनी है, वन मैन कंपनी बोले तो वन मैन कंपनी बोले तो प्रोप्राइटर, अपनी गली के बाहर वाला लाला। याद करो, तुम्हारी गली के बाद छोटी सी दुकान है, या अपने कोचिंग के बगल में छोटी सी दुकान है जहां तुम चिप्स और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हो। अगर इसकी दुकान पे जाए तो उसको स्ट्रक्चर की जरूरत है क्या? मैं दुकानदार हो गया बॉस, मेरे नीचे एक एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे एक एम्प्लॉय, फिर उसके नीचे है दुकान के अंदर ही क्या करेगा वो, है कि नहीं बात? तो इतना तो कमा नहीं पाएगा, इतनी सैलरी बढ़ देगा। यानी कि अगर एक छोटी कंपनी है और वो ज्यादा ग्रो भी नहीं हुई है और उसको ज्यादा, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कतें भी नहीं है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स वर्क है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। वन मैन कंपनी प्रोप्राइटर क्या होगा सर? देयर इज नो नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। लेकिन अगर मान लो बड़ी बड़ी कंपनी है, टाटा, रिलायंस, अडानी, पतंजलि, है ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिनके तुमने नाम सुन रखे हैं, है ना, वो बड़ी बड़ी कंपनी है जिन कंपनी का बिजनेस एक लोकेलिटी में नहीं पूरे देश में फैला हुआ है, या एक ही स्टेट में कई जगह फैला हुआ है, तो उनको स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो उनका एरिया हेड अलग होगा, प्रोडक्शन मैनेजर अलग होगा, उनको जरूरत पड़ती है। जो कंपनी बड़ी होती है साइज में भी और उनके प्रोडक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी भी ज्यादा होती है, वो एक तरह से कई सारे प्रोडक्ट बनाती है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, पेस्ट बना रही है, साबुन बना रही है ना, दुनिया भर की चीजें बना रही है, HUL, राइट। तो भैया इनको ज्यादा जरूरत पड़ती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उन कंपनी से काम आता है जो बहुत बड़ी कंपनी होती है और इनके प्रोडक्ट में कॉम्प्लेक्सिटीज होती है कि बिना स्ट्रक्चर बनाए आप उनको डिफाइन नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो क्या होगा सर? इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। कंपनी का प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा बताओ? स्ट्रक्चर बनाने से, जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, जो तुमने बनाया अभी, प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा बताओ सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाता है? क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जब पता रहेगी, है ना, क्लियर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता रहेगी तो आपको पता होगा किसके ऊपर मैंने कौन सी पावर दी है और उसकी जिम्मेदारी कितनी है। और अगर वो जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहा होगा तो प्रॉफिट आएगा, वो जिम्मेदारी ईमानदारी से नहीं निभा रहा तो क्या करोगे? या तो चेंज करना पड़ेगा, या नौकरी से निकालना पड़ेगा, धमकाना पड़ेगा कि भाई तेरे से काम नहीं हो रहा ना तो मत कर, ठीक है। अब मान लो राजू भाई को काम दे रखा है और वो ईमानदारी से नहीं निभा रहे, है ना, तो उसका मतलब बताना पड़ेगा ना कि तुम्हें काम नहीं आ जाते, तूने काम नहीं किया। और अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी कंपनी प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि वो काम बिल्कुल इफेक्टिवली एफिशिएंटली हो रहा है। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से मुझे पता जाता है कि किसका क्या रोल है और किसका क्या पावर है। अब एक बात देखो, अगर यहां पे प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे, फैक्ट्री मैनेजर के नीचे फोरमैन आ रहा है, फोरमैन के नीचे कौन आएगा? लेबर। तो भैया लेबर का आउटपुट आपको याद आ रहा होगा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो लोअर लेवल आउटपुट के लिए जिम्मेदार होती नहीं होती? आउटपुट की क्वालिटी और आउटपुट की वेस्टेज, बोलो क्वालिटी। अगर क्वालिटी आउटपुट की बेकार आ रही है तो बताओ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? लेबर। फैक्ट्री मैनेजर किससे पूछेगा? फोरमैन से। फोरमैन किसको जवाब देगा? फैक्ट्री मैनेजर को। और प्रोडक्शन मैनेजर किससे पूछेगा? फैक्ट्री मैनेजर से। इसका मतलब जो आपको पता है क्लियरली अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है, तो इसका मतलब आप प्रॉफिट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आपका आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा। अब आउटपुट अच्छा नहीं आ रहा तो फाइनेंस मैनेजर की गलती है इसमें? क्या HR मैनेजर की गलती है? क्या मार्केटिंग मैनेजर की गलती है? किसके ऊपर जिम्मेदारी डालोगे? सर प्रोडक्शन मैनेजर। तो CEO सीधा इसको समझाएगा, भाई तेरे से काम नहीं करवाया जा रहा ना अपने अंडर, तो एक काम कर, कंपनी छोड़ दे। अबे जब आउटपुट की क्वालिटी बेकार आएगी तो पैसा बेकार, इंप्लॉय का काम भी बेकार, और मार्केटिंग, विराट कोहली को ले लो, इसको ले लो, उसकी मार्केटिंग भी बेकार। अबे सब कुछ बेकार हो जाएगा, आउटपुट बेकार है। तो अगर प्रोडक्शन मैनेजर बिल्कुल सख्त होगा, सख्त, कि भाई लेबर को बोल दिया कल से मत आजियो, है कि नहीं बात? वेस्टेज इससे ज्यादा है, नॉर्मल वेस्टेज से ज्यादा हम झेल नहीं सकते,
नॉर्मल इससे तो अलाउड है, नॉर्मल लॉस अलाउड है। अब नॉर्मल लॉस कैसे कर रहे हो? टाइम पास करने आ रहे हो क्या? 2-2 घंटे तक बातचीत कर रहे हो, काम नहीं कर रहे, वेस्टेज कर रहे हो, ठीक है। फिर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी क्यों आई? क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से आपने पता लगा लिया कि प्रोडक्शन का काम फाइनेंस मैनेजर का नहीं, प्रोडक्शन मैनेजर के अंडर होगा। तो आप इसलिए बोल सकते हो बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी विल रिजल्ट इनटू प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है। बोलो सेकंड पॉइंट समझ में आ गया सर? समझ गए ना? राइट। अच्छा बताओ, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बड़ा होता जाएगा तो आपको डिफिकल्टी होगी ड्यू टू इमरजेंसी न्यू फंक्शंस एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। जैसी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाएगी तो आपको अगर किस चीज में डिफिकल्टी आएगी कि प्रोडक्ट का काम एक बंदे को कैसे सौंप दे। जैसे मैंने पहले भी तुम्हें एग्जांपल लिया था, ऐसी कंपनी बताओ जो 2 चीजें बनाती हैं। तो हमने एग्जांपल लिया था कुछ दिनों पहले, होंडा। अब होंडा क्या बना रही है? होंडा सिटी कार, और होंडा क्या बना रही है? स्कूटी एक्टिवा। याद आ गई बात? कार बना रही है और होंडा सिटी कार और एक्टिवा। अब खुद ये बताओ, क्या एक्टिवा की मार्केटिंग कार की मार्केटिंग के साथ की जा सकती है? बताओ जरा। मतलब अगर तुम देखो स्कूटी पे लगा दोगे डिस्प्ले वाला? स्कूटी नहीं नहीं, पर कोई बेस्ट पैसे नहीं देगा ना, एक्सपेंसिव कर दोगे तो ऐसा लगना भी मुश्किल है। स्कूटी में क्रूज कंट्रोल लगा दोगे? क्रूज कंट्रोल, तो स्कूटी में क्रूज कंट्रोल लगाना मुश्किल, फिर उसका एक्सपेंसिव, वो इतनी महंगी हो जाएगी। अब भैया, अब ये ऐड क्या बिल्कुल ऐसा ऐड जो बिल्कुल लग्जरी प्रीमियम का बना रहे हो वो स्कूटी के लिए बना दोगे क्या? नहीं ना, स्कूटी का तो आएगा वाई शुड बॉयज हैव ऑल द फन, है कि नहीं बात? है ना, मैं भी चलाऊं तू भी चला, है कि नहीं बात? तो एक्टिवा का ऐड और इसके ऐड में देखो कितना फर्क है ना। अब कुछ सोच के बताओ, अगर एक्टिवा का ऐड और इसके ऐड में अगर फर्क है तो फिर मैं दोनों की मार्केटिंग सेम कैसे कर दूं भाई? Greatness gets appreciated. 125 सीसी वहां दिखा रहे हो तुम, 1216 सीसी। Gets appreciated. Greatness opens hearts. Greatness does not just come with power; it comes with respect. For years, Activa 125 has earned the trust of India, reinvented. अब दोनों के ऐड में फर्क नजर आया, है कि नहीं बात? अब खुद सोचो, अगर एक कंपनी 2 प्रोडक्ट बना रही है तो क्या दोनों की मार्केटिंग आप सेम कर सकते हो क्या? नहीं ना। इसलिए क्या कहता है, अगर आपकी कंपनी ग्रो कर रही है और 1 से 2 प्रोडक्ट भी बन गए तो बताओ, मार्केटिंग एक डिपार्टमेंट अगर आप सिर्फ सिंगल मार्केटिंग डिपार्टमेंट बना दो और मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कह दो भाई कार का भी तू ही देखेगा और होंडा एक्टिवा का भी तू ही देखेगा, स्कूटी का भी तू ही देखेगा, तो बेचारा है ना कंफ्यूज हो जाएगा। भैया उसकी मार्केटिंग के लिए करो, उसके लिए अलग करो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कैसे कर दोगे आप? है कि नहीं बात? तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किससे जरूरी होता है? जैसे आपकी कंपनी ग्रो करेगी आपको डिफिकल्टी आएगी, है ना, नए काम करने में और नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाने में। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना लोगे तो आप क्या बोलोगे? होंडा ये वाला डिवीजन अलग, ये वाला डिवीजन अलग, इसका मार्केटिंग मैनेजर अलग, इसका मार्केटिंग मैनेजर अलग, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग, इसका फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। यहां फाइनेंस डिपार्टमेंट से आप सीधा काम मंगाओ कितने करोड़ों रुपए,
कि भाई कार बनानी है ना, इतने रुपए चाहिए। एक्टिवा के लिए कितने बताओ, लाखों रुपए। एक्टिवा बिक रही है भैया 70-80 हजार की, होंडा सिटी बिक रही है मान लो लेट से 15 लाख की। तो भैया दोनों के सेगमेंट में फर्क है कि नहीं है? तो इसलिए भैया महान लोगों ने बोला अगर आपके पास दो प्रोडक्ट भी होंगे तो भी आपको डिफिकल्टी आएगी मैनेज करने में। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना उस कंपनी के लिए सबसे बेहतर होता है जो थोड़ा सा ग्रो करके सिंगल लाइन से मल्टीपल लाइन प्रोडक्ट भी वो ग्रो कर जाते हैं और उनकी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती जाती है। ठीक है, अगली बात सर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा सर? आपको किसमें सहायता करेगा? अपने आप को डायनामिक बनाने में। किसमें सहायता करेगा भैया? अपने आप को डायनामिक बनाने में, डायनामिक एनवायरनमेंट में। इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि अगर आपका कंपनी बड़ी होती है, चीजें आपके हिसाब से चेंज होती जा रही है डायनामिक, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। सर ये तो मैं बता चुका हूं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या दिखाता है? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, यानी कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या देता है सर? फ्रेमवर्क, इंटीग्रेट करता है इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट को। अब ये जो हमने बनाया, सुनना ध्यान से, अब ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया, अब ये जो स्ट्रक्चर है अगर आप ध्यान से देखो, चलो ये वाला थोड़ा सा हटा देता हूं। अब बताओ मार्केटिंग डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, नहीं हो गया? तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से हमें क्या सहायता मिलती है कि मुझे पता रहता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को मार्केटिंग से कोऑर्डिनेट करना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बताएगा भाई मुझे क्या करना है, मुझे ऐड कराना पर इतने पैसे नहीं देंगे भैया, ई नहीं चौल में 20 करोड़ नहीं चौल में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट करेगा सर? मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिमांड बताएगा कि भाई इतनी डिमांड है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहेगा भैया इतनी हम डिमांड पूरी कर देंगे, इतना प्रोडक्शन प्लांट हमारा कैपेबिलिटी रखता है गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तुमने देखो कई बार कार कंपनी 5-5, 6-6 महीने का वेटिंग पीरियड देती है, स्पेशली मारुति। क्यों? उनका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इतना सफिशिएंट नहीं है कि पूरे इंडिया की डिमांड को एक हफ्ते में पूरी कर दे। तुम जाओ भैया मुझे मारुति ये चाहिए, तो तुम्हें क्या देंगे? कहेंगे भैया आज बुकिंग अमाउंट दे दो, है कि नहीं बात? मान लो भैया जुलाई चल रही है, ठीक है, दिवाली पे आ जाना। रीजन, मार्केट डिपार्टमेंट कहता है भैया डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है हमारे पास प्लांट्स कम है प्रोडक्शन करने के लिए। तो दोनों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट करके हमें प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। कोरोना आया है ना, तो भैया क्या हुआ? डिमांड घट गई, लोगों के पास पैसे नहीं थे, जॉब छूट गई, तो डिमांड घटी। तो बताया भैया आजकल मार्केटिंग कुछ फायदा नहीं, लोग गाड़ी नहीं खरीद रहे, सस्ती करनी पड़ेगी बेचने के लिए, बिकने वाली गाड़ी। तो प्रोडक्शन क्या होगा? स्लो करना पड़ा होगा, है कि नहीं बात? क्योंकि पुराना स्टॉक ही नहीं बिक रहा। तो ये डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट किसको बताएगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करेगा। ठीक है सर, इसे लिखिए बात। ये फ्रेमवर्क है जो क्या करवाता है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो फ्रेमवर्क है जो क्या कराता है? कोऑर्डिनेट कराता है डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो अगर कोई तुमसे पूछे सर सीक्रेट वर्ड क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के, तो आप क्या बोलोगे? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ नेटवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, जो क्या बताता है? विच डिफाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हेनरी फ्योल ने बताई थी वही। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और क्या हो सकता है सर? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज आल्सो अ स्केलर चेन। और क्या हो सकता है सर? ठीक है, तो जिसे हम स्केलर चेन बोला करते थे, आज उसे हम नया नाम देंगे, इस प्यार को नया नाम देंगे। इस प्यार का नाम क्या रखा? ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बताओ इतनी कहानी समझ, बेसिक समझ में आया कि स्ट्रक्चर क्या होता है? वो मैंने तुम बनवा दिया। सर फिर एक क्वेश्चन आया था कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? क्या पूछ लेते भैया? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, राइट। जैसे भैया अगर तुम्हारे घर में, अभी तो खैर न्यूक्लियर फैमिली होती है, मान लो पहले जॉइंट फैमिली रहती थी, जैसे मेरे पापा लोग हो गए, तो पापा के जो पापा हो गए, दद्दू के भाई,
और पहले जमाने में लोग भी ज्यादा होते थे। मेरे पापा 4 भाई बहन है ना, ठीक है। तुम्हारी मेरी मौसी 4 मौसी है, 3 मौसी है ना, तुम्हारे भी होंगे ना 3-4 मौसी, 2-3 चाचा है ना। और फिर भैया पापा के भाई, सगे भाई एक फैमिली में रह रहे हैं, तो बहुत बड़ा फैमिली ट्री है। अब वहां माता जी परेशान, एक घर में 10 बालक है, कोई उधर लटक रहा है, कोई उधर लटक रहा है, कोई पैर पकड़े लट रहा है, कोई सिर पकड़े लट रहा है। तो मम्मी को एकदम गुस्सा आ गया। मम्मी क्या बोल रही है, भैया इतने बच्चे नहीं संभाल पाऊंगी मैं, मेरे बस की नहीं इतने बच्चे संभालना। अरे ये तो भैया है ना, कत्ल कर देंगे किस दिन मेरा, राइट। किसी को कुच्ची, किसी को कुच्ची, किसी को कुच्ची, भैया मेरी बस की नहीं है। जैसी माता जी ने ये बोला, या दादी ये बोल रही है तुम्हारी, या ताई जी ये बोल रही है कि भैया इतने बच्चे नहीं संभाल सकते, हम अकेले नहीं संभाल सकते भैया, इन्हें स्कूल में भर्ती करो, सबको प्ले स्कूल में डालो, इन्हें ये वहीं रहेंगे, हमारे बस की नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि भैया हम इतने बालक नहीं संभाल सकते, इसका मतलब पता क्या होता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि एक पर्सन अपने अंदर कितने बच्चे संभाल सकता है, उसे क्या बोलते हैं, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब इसे कंपनी पे ले जाओ, कंपनी में ले जाओ, हिंदी में बताओ क्या लिखूंगा मैं, व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉय वर्कर हैंडल कर सकता है। ये तो हो गई सर हिंदी वाली बात, है ना। एक मैनेजर अपने अंडर कितने एम्प्लॉय हैंडल कर सकता है, यानी हमारी मम्मी एक दिन में कितने बच्चों को, है ना, चांटे लगा लगा के संभाल सकती है, ठीक है। तो हमें नहीं संभाल पाती है 2-3 का, 10 बच्चे कैसे संभाल लें, ठीक है ना। अब इस बात को कंपनी में ले गए तो हम लिखेंगे क्या, लिखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मींस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, दैट कैन बी effectively managed by superior। एक सुपीरियर बंदा कितने अपने अंडर इफेक्टिवली, तहजीब से कितने एम्प्लॉय को संभाल सकता है। तो एक मैनेजर कितने लोगों को हैंडल कर सकता है, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, अब देखना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें दिखाया, सुनना ध्यान से, बहुत खतरनाक बात बोलने जा रहा हूं मैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें बनवाया, बताना जरा, फाइनेंस मैनेजर के अंदर कितने लोग आ रहे हैं, 2। इसके अंदर कितने लोग आ रहे हैं, मान लो इसके अंदर लेबर या वो एम्प्लॉय आ रहा है, तो मान लो एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3। अब एक कंपनी ने फाइनेंस मैनेजर के अंदर 2 लोग रखे, इसका मतलब पता क्या है कि उन्हें अपने फाइनेंस मैनेजर की कैपेबिलिटी और हिंदी में बोलो तो हैसियत पता है कि वो अपने अंदर 2 को संभाल ले, वही बहुत बड़ी बात है। तीसरा रख दूंगा तो लेट जाएगा बिल्कुल। असिस्टेंट के अंदर मैंने 3 एम्प्लॉय रखे हैं, तो उन्हें पता है 3 संभाल ले, वो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। चौथा रख देंगे तो आत्महत्या कर लेगा, है कि नहीं बात। तो कई बार हम सुनते हैं टीम लीडर, आजकल नया वर्ड चलता है क्या सर, टीएल बोले तो टीम लीडर। टीम लीडर कहता है भाई मेरे अंदर तो टीम है, 10 जनों की मत दे देना भाई, मैं 10 की नहीं सुन सकता, ये आपस में लड़ मरेंगे, खून कर देंगे, मेरी बस की जिम्मेदारी नहीं संभालना। तो एक टीम लीडर अपने अंडर कितनी टीम को संभाल सकता है, कितने टीम मेंबर को संभाल सकता है, उसे बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अगर ये 3 ही संभाल सकता है एक्सपीरियंस के हिसाब से और इसके खुद की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो आप बोलोगे ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या सोचकर क्या देखकर बनाया जाता है, बोलो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को देखकर बनाया जाता है। यानी कि आप यूं ही नहीं कि इसके अंदर तुमने 50 इंप्लॉय रख दिए, E4V2 5 6 7 भैया ले 50, तो ये आत्महत्या ना कर लेगा, 50 के संभालू कैसे, फिर तुम मुझे कहोगे तेरी जिम्मेदारी थी। बात समझ में आ रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या सोच के बनाया जाता है, बोलो जल्दी बोलो।
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी क्या सोच के बनाया जाता है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को ध्यान में रख के कि मेरा एक एचआर मैनेजर कितने लोगों को संभाल सकता है, मेरा मार्केटिंग मैनेजर कितने लोगों को संभाल सकता है, मेरा सेल्स मैनेजर अपने अंडर कितने सेल्समैन को संभाल सकता है। जितना वो संभाल सकता है उतना ही देंगे, उससे ज्यादा देंगे तो सेल्समैन भी काम नहीं करेगा और मैनेजर भी क्या होगा? आउटपुट नहीं दे पाएगा। इसलिए कहा गया, अगली बात लिखो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का अगला पॉइंट सर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या ऑफ द कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन लिख दो, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन आफ्टर कंसीडरिंग स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी हम स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को जज करने के बाद बनाते हैं। तो एक बार मुझे बता दो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, बताना जरा, क्या होता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट? ये हिंदी वाली बात याद रखना, एक मैनेजर अपने अंडर कितने इंप्लॉय को हैंडल कर सकता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है। एग्जाम में आता है, एमसीक्यू में जरूर आएगा, ठीक है, नोट कर लिया। हटा रहा हूं मैं, है ना। अब से स्पैन ऑफ मैनेजमेंट भी सर दो टाइप के होते हैं, है ना। सर कैसे पता लगेगा? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देख के पता लगेगा कि सर स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो टाइप के कैसे होते हैं। पहला सर देखेंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से। ए पुष्पा इधर ध्यान दो। सर सेल्स मैनेजर है, इसके अंडर सेल्समैन है ना, सेल्समैन 1, सेल्समैन 2, सेल्समैन 3, सेल्समैन 4, सेल्समैन 5, सेल्समैन 6, सेल्समैन 7, है ना, सेल्समैन 8, राइट। इतने सेल्समैन है, यानी एक मैनेजर के अंदर, एक मैनेजर के पास इतने सारे सेल्समैन है रिपोर्टिंग के लिए, समझाने के लिए, उनसे काम करवाने के लिए। अगर एक मैनेजर के अंदर या एक सुपीरियर के अंदर बहुत सारे लोग हैं तो बताओ इस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को क्या नाम दोगे? एक सेल्समैन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय, एक सुपीरियर के अंदर बहुत सारे लोग, इस प्यार को क्या नाम देंगे सर? इस प्यार को नाम देंगे वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम देंगे? सर ये हमारा वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, यानी एक के अंदर बहुत सारे, है ना। ये सारे के सारे जो सेल्समैन होंगे ना, एक एम्प्लॉय के अंदर अगर इतने सारे सेल्समैन है तो इसका मतलब होता है कि सारे के सारे सेल्समैन और एम्प्लॉय और सेल्स मैनेजर खुद क्या है? बहुत होशियार है, यानी क्या है? बहुत ज्यादा दिमाग वाले, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जिनको खुद को काम करना अच्छे से आता है। उन्हें ज्यादा बार बार समझाने की जरूरत नहीं, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ऐसे कर ले, खुद कर लेंगे अपना काम। जब इंसान को खुद समझाने की जरूरत नहीं है ज्यादा, वो खुद अपना काम जानता है, खुद अपने काम में एक्सपर्ट है, तो उसके अंदर जितने भी इंप्लॉय रखोगे पहले से सब काम जानते होंगे। अगर पहले सब काम जानते होंगे तो वो तो सिर्फ पूछेगा, सर मैं यहां जा रहा हूं, है ना, आपको रिपोर्ट करूंगा 2 दिन बाद, ठीक है, इन काइंड को विजिट करने जा रहा हूं। अगर हाँ जा तो ज्यादा थोड़ी समझाना है, कैसे बात करनी, क्यों करना, समझने वाली बात, राइट। तो वो क्या है सर? वो क्या है? वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है सर? इन दिस स्पैन ऑफ मैनेजमेंट salesman does not require close supervision. क्यों? As all salesmen are
एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट। एक्सपीरियंस, तो ये क्या होता है सर? बोलो सर, वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कि कैसे हम क्या करते हैं भैया, मार्केटिंग करते हैं। कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे क्लाइंट के पास जाते हैं, कैसे क्लाइंट से बात करते हैं, है कि नहीं बात? ऑफिस में जाएगा, कैसे बात करेंगे, डायलॉग भी मारता है। अभी वो सेल्समैन ही नहीं होता जो उल्टा ना पड़े, है ना? कि सेल्समैन तो असली वो सेल्समैन होता है जो सामने वाले की पर्ची को भी उल्टा बैठ के पढ़ ले कि कितने रुपए की पर्ची, कितने रुपए क्लाइंट, मतलब कितने रुपए का कोटेशन है, राइट? समझ ना बात? तो भैया वो समझाता है। यानी आपको पता लग रहा है कि एक बंदा, एक मैनेजर अपने सेल्समैन को पर्सनल ट्रेनिंग टाइप दे रहा है। यानी उसे पता है कि सेल्समैन क्या है। सेल्समैन क्या है? बोलो, नालायक है, ठीक है ना? उसको पर्सनली क्या देना पड़ता है? हमें अटेंशन देनी पड़ती है। पर्सनली क्या देना पड़ता है सर? अटेंशन देनी पड़ती है। तो सेल्समैन क्या है सर? नालायक है, पर्सनली अटेंशन देनी पड़ती है। तो देखो उसमें क्या होगा, एक सेल्स मैनेजर, सुनना ध्यान से, सेल्स मैनेजर, उसके नीचे सेल्समैन 1 और उसी के नीचे मात्र सेल्समैन 2। दो ही सेल्समैन है। अब बताओ इस प्यार को क्या नाम देंगे? यानी कि बिल्कुल रॉकेट सिंह की तरह वो कह रहे हैं भाई इसे समझा लूं, पहले इसे बैठा के ले जाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। घर ग्राहक से ऐसे बात करते हैं, क्लाइंट से ऐसे बात करते हैं, कंपनी में ऐसे बात करते हैं, ऐसे, है ना, हाथ जोड़ते हैं भैया, ऐसे गुड इवनिंग जैसे करते हैं, टाई कैसे पहनते हैं, शर्ट कैसे पहनते हैं, है कि नहीं बात? इसको समझाना पड़ता है, ठीक है? रुक जा, पढ़ा रहा हूं अभी, है ना, राइट? तो सेल्समैन पूछेगा बार बार कि सर मैं इस काम को कैसे करूं, इस काम को कैसे करूं, इस काम को कैसे करूं, पूछेगा नहीं पूछेगा? तो आपको बताया आप अपने अंडर क्या कर सकते हो सर? आप अपने अंडर बहुत कम लोगों को संभाल सकते हो। ऐसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को क्या होता है सर? हाँ बिल्कुल सही, इस प्यार को आप नाम दोगे नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो सर दिस इज वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में क्या लिखना पड़ेगा? लिखो, समझ गए ना? नालायक होते हैं, नालायक, कुछ नहीं पता, इन्हें क्या करना पड़ता है? बार बार समझाना पड़ता है। क्या लिखोगे? ईच सेल्समैन रिक्वायर्ड क्लोज सुपरविजन एंड गाइडेंस, है ना? रॉकेट सिंह की तरह, रणबीर कपूर की तरह समझाना पड़ता है भाई कैसे कैसे काम करना है। विजिट खुद जाके कराना पड़ता है ना? ऐसा क्यों होता होगा? एज ऑल सेल्समैन आर न्यू, है ना? सारे के सारे न्यू है, राइट? इसलिए ऐसा करना पड़ता है। दे नीड क्लोज कोऑर्डिनेशन। All salesmen are new, they need close coordination. All salesmen are new, they need close coordination. तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट दो तरीके के होते हैं, जल्दी बताओ कौन कौन से सर? वाइड और नैरो। वाइड का मतलब एक सुपरवाइजर या मैनेजर अपने अंदर बहुत सारे लोगों को क्या कर सकता है? संभाल सकता है। नैरो का मतलब एक सुपरवाइजर अपने अंदर सिर्फ बहुत कम लोगों को संभाल पाता है। रीजन, जो ज्यादा को संभाल रहा है इसका मतलब उसके एम्प्लॉय एक्सपीरियंस्ड है और काम जानते हैं। जो कम को संभाल रहा है इसका मतलब उसके अंडर एम्प्लॉय न्यू है और अनएक्सपीरियंस्ड है। तो वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट और नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बोलो, नोट कर लिया सर? एज ऑल सेल्समैन आर न्यू, दे नीड क्लोज कोऑर्डिनेशन। दे नीड क्लोज कोऑर्डिनेशन, क्लोज कोऑर्डिनेशन। अब सर अगली तरफ बढ़ते हैं सर, ध्यान से देखेंगे। अब सर जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब हम अपनी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो भैया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर
ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं सर, एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। आज हम कवर करने वाले किसको सर? फंक्शनल स्ट्रक्चर को। सर पहली बात, आम आदमी को जब एक वर्ड बताया जाता है फंक्शन, तो उसको बोलते हैं भाई फंक्शन का मतलब होता है क्या? काम करना। क्या होता है सर? काम। यानी कि भाई ये तेरा काम है, ये तेरा फंक्शन है, सिंपल सी बात है। लेकिन जब एक टेक्निकल पढ़े लिखे बंदे को बताया जाएगा तो उसको बोलेंगे सर फंक्शन का मतलब होता है डिपार्टमेंट। क्या होता है सर? डिपार्टमेंट। कि ये आपका डिपार्टमेंट है, इनका डिपार्टमेंट है। भाई ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, मैं नहीं करूंगा ये काम। और जो बेचारा अनपढ़ होगा, जिसे मैनेजमेंट की भाषा नहीं आती होगी, है ना, राइट, उसे हम क्या बोलेंगे? अब उसे बोलो डिपार्टमेंट है तो बेचारा वैसे नहीं समझ पाएगा। मान लो कोई पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, एम्प्लॉय पीओ नहीं है मान लो, या हमारी कंपनी का चौकीदार है, या सफाई करने वाला हाउसकीपर है, तो उसे टेक्निकल भाषा में थोड़ी बात करोगे। अब उसे तो बोलोगे तेरा डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग इज योर डिपार्टमेंट। ये क्या बोल दिया भैया, हमें नहीं समझ में आया कुछ भी। तो उसको बोलोगे भाई ये तेरा फंक्शन है, वो तब भी नहीं समझेगा। ये क्या बोल दिया भैया, हमें कछु नहीं समझ में आया। हिंदी में बोल दो ना भैया, इतने पढ़े लिखे होते तो हम तुम्हारी जगह ना बैठे होते, है कि नहीं बात? हिंदी में बोल दो तो उससे पता क्या बोलेंगे? भाई 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 ये काम तेरा है, सुबह 9 बजे ऑफिस खुलता है तो 8 बजे आके क्या हो जाना चाहिए? साफ सफाई हो जानी चाहिए, झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए, ठीक है, ये तेरा काम है। चौकीदार को बोल दिया भैया इंप्लॉय 9 बजे या 9 बजे से पहले आ सकता है, तो सुबह 8 बजे क्या कर देना? गेट ओपन कर देना। हिंदी बता दिया। तो जिसे हम काम बोलते हैं और जिसे हम फंक्शन बोलते हैं इंग्लिश में, उसे टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे सर? डिपार्टमेंट बोलेंगे। यानी एक हुआ हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक हुआ हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। अब एक बहुत सिंपल सी बात, सर फंक्शनल स्ट्रक्चर कौन सी कंपनी बनाती होगी? बहुत आसान बात, बहुत बड़े जुगाड़ होता है, इससे तुम्हारे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सिंपल सी बात, जो कंपनी तुम्हारी तरह सिंगल है ना, एलन कह रहा है मैं न्यू है, जो कंपनी तुम्हारी तरह सिंगल है, इसका मतलब क्या हुआ सर? जो कंपनी सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाती है, सिंगल लाइन प्रोडक्ट। तुमको मैंने कहा था अलग अलग बैठो, तू इधर आ जा। हाँ कोई बात नहीं, जल्दी कह रहा हूं मैं, वरना ये पढ़ेगी नहीं, ये तेरी तरफ ही देखती रहेगी। देखियो इसे लगता है स्क्रीन इधर है, जल्दी आओ। नहीं उसको नहीं कह रहा, बच्चे इधर आ जा, मैं सही कह रहा हूं, डिस्टर्बेंस होती है, जल्दी उठ। जो कंपनी, अब बताओ ऐसी कौन सी कंपनी है जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाती है? सिंगल लाइन बताओ जल्दी। अभी भी एग्जांपल भी लिया है, नलायको मारुति। मारुति ये चप्पल बनाती है क्या? नहीं बताओ, मारुति चप्पल बना रही है? नहीं ना। मारुति कुर्सी बना रही है? हाँ, मारुति सिंगल लाइन प्रोडक्ट ओनली कार। और कौन सी कंपनी बनाते हो तुम? हाँ, एमआरएफ के क्या आते हैं सर? टायर्स। सिंगल लाइन प्रोडक्ट हो गया। एमआरएफ के पंखे तो ना आ रहे, एमआरएफ का पंखा लाया हूं, बहुत तेज चलता है कि नहीं बात? राइट, समझ ना बात? एक कंपनी जो सिंगल लाइन प्रोडक्ट बनाती है उसको कहा जाता है भाई तुम क्या फॉलो करेगा? फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारा काम क्या है? सिर्फ एक काम क्या है तुम्हारा? एक। तुम्हारा फंक्शन क्या है? इधर ध्यान दो, फिर तुम्हें बिठाना पड़ेगा, दोनों नहीं सुनते बात। तुम्हारा फंक्शन क्या है सर? सिंगल। एक फंक्शन है तो तुम फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करो। एक फंक्शन है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करो, एक फंक्शन है तो फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करो। सर अगर मेरा एक ही फंक्शन में टायर बना रहा हूं, बाटा लेदर प्रोडक्ट ही बना रहा है, लेट से जूते चप्पल बैग, सिंगल लाइन प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना। मारुति क्या बना रही है? कार, सिंगल लाइन प्रोडक्ट हो गया। बाटा ये एमआरएफ क्या बना है? टायर, सिंगल लाइन प्रोडक्ट हो गया। ब्रिटानिया क्या बना रही है? खाने पीने के ब्रेड और ये है ना, रेड बिस्किट वगैरह, सिंगल लाइन प्रोडक्ट हो गया। जो भी कंपनी सिंगल एक ही काम करती है, एक ही फंक्शन करती है, एक ही काम बोले तो एक ही फंक्शन, उसको हम फंक्शनल स्ट्रक्चर देते हैं। सर उसे हम फंक्शनल स्ट्रक्चर देंगे तो क्या होगा? उसका एक काम है इसलिए सब कुछ एक ही होगा। एक काम तो सब कुछ एक। मारुति, इसलिए एग्जांपल देखो नोट्स में दिया है, मारुति सिर्फ क्या बनाती है? कार, तो सब कुछ एक होगा। सिर्फ एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक ही फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट और एक ही एचआर डिपार्टमेंट। समझ गए? बोलो सर। आप प्रोडक्शन को क्या बोलोगे सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। यानी अगर आप इसे किसी आम आदमी को बताओगे तो आप बोलोगे सर प्रोडक्शन इज योर फंक्शन। तुम्हारा एक फंक्शन क्या है?
प्रोडक्शन, एक फंक्शन क्या है फाइनेंस, मार्केटिंग तुम्हारा क्या है एक फंक्शन है, काम है, पर्सनल एचआर तुम्हारा क्या है, एचआर तुम्हारा एक फंक्शन है, काम है। अब इस फंक्शन को टेक्निकल भाषा में क्या बोल दोगे तुम सर? प्रोडक्शन फंक्शन इज ए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस फंक्शन इज ए फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग फंक्शन इज ए मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर फंक्शन इज ए एचआर डिपार्टमेंट। ठीक है भैया? अब देखो कैसे सर, प्रोडक्शन कहां होता है ना, राइट? मारुति का तुम्हारी उनकी फैक्ट्री या यूनिट्स में, फैक्ट्री। फाइनेंस का क्या होगा सर? ठीक है, आप उसके लिए क्या रखेंगे, सीए वगैरह रखेंगे। मार्केटिंग एचआर है ना, या परचेज या टेक्नोलॉजी। पर्सनल के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, मान लो आपने एक और फंक्शन जोड़ दिया टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, तो टेक्नोलॉजी कहां से ले रहे हैं वो? जापान से ले रहे है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी है उन्होंने टेक्नोलॉजी की। तो आजकल वो कहते हैं हाइब्रिड इंजन बनाना है, हाइब्रिड। हाइब्रिड समझ रहे हो? वो इंजन जो बैटरी से स्टार्ट होंगे, वो कभी भी पेट्रोल से स्टार्ट नहीं होंगे। पेट्रोल से स्टार्ट नहीं होंगे, पेट्रोल बचेगा ना, हाँ, लेकिन जो बटर स्टार्ट वाले होते हैं वो बैटरी से, इलेक्ट्रिक होते हैं ना। हाइब्रिड इंजन बना रहे हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर? Make way for the CS. अब बताओ, ये काम किसका है सर? ये काम किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, कि किस सेलिब्रिटी से ऐड कराना है तो किससे कराना है, लोकेशन कहां चूज करनी है ना, ऐड को किस तरह से प्रेजेंट करना है, कितनी देर का बनाना है। 30 सेकंड का ये ऐड है बस, है ना। तो 30 सेकंड में अपने प्रोडक्ट को क्या दिखाना है आपको? एक लग्जरियस प्रोडक्ट दिखाना है। 30 सेकंड का ऐड है मात्र, ठीक है। जब हम टीवी पे स्लॉट हायर करेंगे तो सस्ता भी पड़ेगा। 30 सेकंड के हिसाब से पैसे होते हैं, टीवी वाले तो सेकंड के हिसाब से पैसे लेते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये काम किसका है? मार्केटिंग का। अब मारुति के पास एक ही मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा या 10 डिपार्टमेंट होंगे? एक ही होगा ना। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है, सुनना ध्यान से, फंक्शनल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जिसके सारे एक ही फंक्शन होते हैं। एक ही प्रोडक्शन फंक्शन, एक ही फाइनेंस फंक्शन, एक ही मार्केटिंग फंक्शन और एक ही एचआर फंक्शन और एक ही टेक्नोलॉजी और रिसर्च फंक्शन, एक ही फंक्शन होते हैं। यानी जो कंपनी सिंगल लाइन प्रोडक्ट होती है उसको कितने डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत है? क्या एक ही काम के डबल डबल बनाने हैं क्या? बोलो नहीं। सिंगल लाइन प्रोडक्ट मस्ट हैव ओनली वन प्रोडक्शन, वन फाइनेंस, वन मार्केटिंग, वन एचआर। यानी देयर इज नो डबल डिपार्टमेंट, डुप्लीकेट डिपार्टमेंट ऑफ वन फंक्शन। यानी मार्केटिंग एक ही है, डुप्लीकेट नहीं है, फाइनेंस एक ही है, डुप्लीकेट नहीं है। देयर इज नो डबल डिपार्टमेंट ऑफ, बोलो, देयर इज नो डबल डिपार्टमेंट ऑफ वन फंक्शन। बात समझ में आ गई भैया? और फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? हिंदी में लिख लो चाहे, फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? फंक्शंस को आप डिपार्टमेंट बोलते हैं। फंक्शंस को आप डिपार्टमेंट बोलते हैं, फंक्शंस को आप डिपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है भैया। सिंगल लाइन प्रोडक्ट नोट कर लिया सर। अब आती है बात सर, अगर सिंगल लाइन प्रोडक्ट है इसके फायदे क्या होंगे भैया? ये पुष्पा, इसके क्या फायदे होंगे रे? सब पहला फायदा, जब आप एक ही फंक्शन में काम कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट काम कर रहे हैं, है ना, राइट, तो यही आपका एमसीक्यू में बन जाता है। आप उस प्रोडक्ट में क्या बन जाते हैं? आप उस डिपार्टमेंट में क्या बन जाते हैं? उस फंक्शन में क्या बन जाते हैं? स्पेशलिस्ट। बेटर डिवीजन टेक प्लेस, स्पेशलाइजेशन फंक्शन, इट रिजल्ट टू बेनिफिट्स। एम्प्लॉय हैव टू सिमिलर टास्क। अब एक ही तरह का टास्क आप रोज कर रहे हो तो क्या बन जाओगे सर? स्पेशलिस्ट हो जाओगे ना। जैसे कई बार शेफ को देखा होगा, क्या कर रहा है वो?
प्याज काट रहा है तो देखता भी नहीं प्याज को, एक ही काम को वो एक ही फंक्शन को वो रोज करता है। अब आप फाइनेंस का काम रोज करोगे तो क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट। अब आप प्रोडक्शन रोज कर रहे हो, क्या हो जाओगे? एक्सपर्ट। है कि नहीं बात? आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को पता नहीं लगा आपने वो काम कर भी लिया, इतने हैबिचुअल हो चुके हो आप उसके। जैसे ब्रश होता है ना, ब्रश, कभी कभी आप दिमाग में स्ट्रेस भी नहीं देता कि अरे मैं ब्रश कर रहा हूं। ऐसा कब सोचोगे? जब 20 दिन बाद तुम ब्रश करोगे, है ना, अरे आज मैं ब्रश कर रहा हूं, आज अच्छे से करूंगा। अब तुम अगर रोज कर रहे हो तो तुम्हारा दिमाग स्ट्रेस नहीं देता कि तुम ब्रश कर रहे हो, तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम्हारी बॉडी क्या चल रही है? उस प्रोसेस में चल रही है जिसका तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। अच्छा तो सांस ले रहे हो, कभी सोचा है सांस ले रहा हूं? बता ना, पता कब सोचते हैं? जब सांस अटक जाती है, या कहीं गले में कुछ फंस गया, या आपको ऐसी जगह भेज दे जहां पे ऑक्सीजन की कमी हो, है कि नहीं बात? राइट, या ऐसी जगह भेज दे जहां केमिकल या बहुत ज्यादा बदबू आ रही हो, तो आपको लग रहा है सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं बात? राइट। लेकिन यहां बैठे हो तो यहां बैठे कभी हमने सोचा इतने महीनों में, अरे सांस ले रहा हूं मैं, कमाल हो गया, सांस ले रहा हूं भाई। तो ये आपको सोचने की जरूरत है क्या? आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली क्या कर रही है? इस काम को कर रही है, और आपको इस पे दिमागी तौर पर स्ट्रेस नहीं देना। ब्रश कर रहे हो, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं चलता, क्योंकि आपको पता है डेली ये काम है। अब आप जो काम डेली कर रहे हो उसमें आपका दिमाग आपको स्ट्रेस नहीं देता, लेकिन जो काम आप कभी कभी करते हो वो आपको दिमाग पे स्ट्रेस देता है कि नहीं बात? यार ऐसे कैसे होगा, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है। मान लो रोज स्कूटी से आ रहे हो, एक दिन बस से आना पड़ जाए तो दिमाग में बहुत स्ट्रेस आएगा, पहले वहां जाऊंगा, ये वाले नंबर की बस पकड़ूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। समझे ना बात को? ऐसे सोचो, जब आप एक ही काम को रोज कर रहे हो, सिमिलर टास्क परफॉर्मिंग डेली, तो आपकी एफिशिएंसी, और आप उसमें क्या हो चुके हो सर? बोलो, प्याज काटने वाले शेफ की तरह एक्सपर्ट हो चुके हो। सर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा नहीं होगा? बोलो, इधर ध्यान दो, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा नहीं होगा? सर अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसकी तरह सर? इनकी तरह। फुटबॉल खेल रहे हो और आपने जाना कि भाई मुझे एक दूसरे को पास देना, जैसे वो नहीं था, ले प्रीति ये ले पास, दिखा दे उस लौंडे को, दिखाई थी ना वीडियो वाली, याद आ गई होगी, है ना? कि कोऑर्डिनेशन, शाहरुख खान समझाते भी सबसे बड़ी कमी क्या है? तुम दोनों एक दूसरे को पास नहीं देते। ठीक है, अगर तुम्हारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है तो तुम्हारे अंदर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश होगा। ऑल पर्सन वर्क विद इन द, अगर आप देखो, अगर आप एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो भैया अपने डिपार्टमेंट को आगे ले जाने के लिए, अपने डिपार्टमेंट को सक्षम बनाने के लिए करना पड़ेगा सर, सब जितने भी स्पेशलिस्ट होंगे क्या करना पड़ेगा सर? कोऑर्डिनेट आसानी से रहेगा। क्योंकि आपको पता मुझे फाइनेंस से कोऑर्डिनेट करना है, तुम कभी एचआर से कोऑर्डिनेट करोगे? नहीं, तुम्हारे फाइनेंस वाले बंदे हैं, है कि नहीं बात? क्या फाइनेंस वाले बंदों को प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करना है क्या? नहीं, हमें तो मार्केटिंग वाले का, मैं हमारा बॉस मीटिंग करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का बॉस कहेगा किससे सर? फाइनेंस डिपार्टमेंट से, भाई इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इंप्लॉय को तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करना है ना, मुझे सेल्समैन से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कहां बैठा हूं? मैं तो बैलेंस शीट बना रहा हूं ना भाई, मैं अपने बगल वाले से कोऑर्डिनेट करूंगा तो एंट्री पास करते, भाई ये नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा। समझ में आई ना बात? सोच रहे बात को? मुझे पराग सर से कोऑर्डिनेट करना है कि सर आपकी क्लास कितने बजे है, मेरी कितने बजे है। मुझे प्रीति मैम से कोऑर्डिनेट नहीं करना कि कितने बच्चे आपने, है ना, राइट, हैंडल कर लिए, कौन पेरेंट्स है, मुझे उससे कोऑर्डिनेट नहीं करना, मुझे दूसरे टीचर के साथ कोऑर्डिनेट करना है। तो कोऑर्डिनेशन आसान रहता है, क्योंकि मुझे 2 लोगों से कोऑर्डिनेट करना है, मुझे 100 लोगों से दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं करना। कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट कौन करेगा? डिपार्टमेंट हेड दूसरे डिपार्टमेंट हेड से कोऑर्डिनेट करेगा। बताओ एफिशिएंसी बढ़ेगी या घटेगी? बिल्कुल सही बात, एफिशिएंसी क्या होगी सर आपकी? बढ़ेगी, राइट? ठीक है, क्यों? एज एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय बिकम एक्सपर्ट, एम्प्लॉय एक्सपर्ट हो जाता है। ठीक है ना? इसमें सर कैसे कोऑर्डिनेट होगा? एज लिखो, एज एम्प्लॉय इन वन डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय इन वन डिपार्टमेंट वर्कड एज अ टीम, दैट इज, वो कैसे काम करते हैं? एस्प्रिट डी कॉर्प की तरह, एस्प्रिट डी कॉर्प की तरह काम करते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन अच्छा रहता है। एक टीम से काम करेंगे ना मिलकर, क्योंकि अपने डिपार्टमेंट को हमें आगे ले जाना है। सर कॉस्ट ज्यादा होगी या कम होगी?
सर कॉस्ट कम होगी क्यों? अब फाइनेंस डिपार्टमेंट दो थोड़ी बनाने हैं। ये देखिए बात, ऑल फंक्शन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट कैरिड ऑन बाय द फाइनेंस डिपार्टमेंट। जितने भी फाइनेंस है काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट देखेगा, मैं अलग से डिपार्टमेंट नहीं खोलूंगा। तो मुझे एक ही डिपार्टमेंट बनाना है, 10 डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सर प्रॉपर अटेंशन होगी नहीं होगी? सर कैसे होगी बताओ? लिखो एज वन एग्जीक्यूटिव हैज टू सुपरवाइज, वन एग्जीक्यूटिव हैज टू सुपरवाइज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, वन एग्जीक्यूटिव हैज टू सुपरवाइज नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है ना? तो अगर आप कंपनी में नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखते हैं तो आप अपने एम्प्लॉय को क्या कर सकते हो सर? प्रॉपर टेंशन दे सकते हो। जैसे अभी देखा हमने कि वो बंदा रणबीर कपूर के ऊपर क्या दे रहा है? प्रॉपर टेंशन दे रहा है कि भाई ऐसे काम करना है। और ये बताओ, मान लो भैया तुमने फॉर एग्जांपल एमबीए किया, ठीक है, एमबीए करने के बाद फाइनेंस में किया, तो जब तुम इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू क्रैक भी कर लिया, तो एज अ फाइनेंस मान लो या तुमने सीए कर लिया या एमबीए फाइनेंस किया, तो तुम्हारी जो जॉब लगेगी वो किस डिपार्टमेंट में लगेगी? फाइनेंस में। तुम्हारे पास के जो लोग बैठे होंगे वो कौन से होंगे? तो तुम जब बातें करोगे किससे करोगे? पीएनएल, बैलेंस शीट, जर्नल, बिल, है कि नहीं बात? अच्छा तो कभी तुम आपस में बात करते हो, यार मुझे मॉलिक्यूल समझ में नहीं आया, यार N2O प्लस H2O क्या बनेगा? करी बात है कभी? लेकिन तुम ये जरूर कर लोगे भाई कि डेप्रिसिएशन कैसे करा, है ना, SLM कैसे लगाया, ठीक है, या तूने गुडविल की ये वैल्यूएशन कैसे करी, ठीक है, या तूने शेयर फॉरफिट की एंट्री क्या डाली, या तूने ये वाला प्रोराटा बेसिस पर तेरा ये इक्विटी का शेयर का अमाउंट कैसे आया, तुम ये वाली बातें जरूर करोगे, है कि नहीं बात? एडमिशन की क्या एंट्री है, तुम ये बात जरूर करोगे। डिसोल्यूशन का तूने पीरियड एप्रोप्रिएशन में ये एंट्री कैसे डाली, ये बातें जरूर करोगे। लेकिन कभी भी साइंस वाली बातें नहीं करोगे। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप जिस डिपार्टमेंट में ट्रेन होते हैं, जिस डिपार्टमेंट में आपकी क्वालिफिकेशन होती है, आपको क्या किया जाता है? आपको उसी डिपार्टमेंट में भेजा जाता है और उस डिपार्टमेंट में आपकी ट्रेनिंग क्या होती है? इजी होती है। ऐसा नहीं होता कि तुमने फाइनेंस का काम किया, तुम सीए बन गए, एमबीए फाइनेंस बन गए, तुम्हें मार्केटिंग में भेज दिया, तुम कह रहे मार्केटिंग में तो बोलना भी ना आता भैया, भैया मुझे बोलना नहीं आता, मैं तो क्या काम जानता हूं, लैपटॉप पर बैठे क्या जानता हूं, डेबिट वोट्स कम्स इन, क्रेडिट वोट गोज आउट, सिर्फ यही आता भैया मुझे। और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के तरीके अलग होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वही बंदा कामयाब है जिसे बोलना आता हो। कई लोग होते हैं जैसे वाला के बात ही करते रहते हैं दोनों जिगरी यार, इन्हें कहां जाना चाहिए? मार्केटिंग डिपार्टमेंट। वो बेचारा निश्चित चुपचाप सुनता रहता है, नोट करता रहता है, उसे कहां जाना चाहिए? फाइनेंस डिपार्टमेंट, जहां बोलने का काम कम हो। और जो बिल्कुल चटपटे आदमी हो, बिल्कुल बोलते रहेंगे, इतने दिनों बाद आया है, आप ही पढ़ नहीं रहा, बोलने में लग रहा है, भाई तुझे पता है ऐसा हो गया, मैं सुन नहीं रहा बात को। तो भैया ये बात बताओ, उस डिपार्टमेंट में उस बंदे की ट्रेनिंग क्या होगी? अच्छी होगी, बेकार होगी? आसान होगी। इससे लिखा है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय इजियर एज ट्रेनिंग देने वाला और ट्रेनिंग लेने वाला किसे फोकस करता है सर? पर्टिकुलर स्किल पे फोकस करता है, जैसे फाइनेंस स्किल। ठीक है, एग्जांपल पढ़ लो क्या लिखा है। एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर गिविंग ट्रेनिंग इन प्रोडक्शन टेक्निक ओनली। एम्प्लॉय ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट आर गिविंग ट्रेनिंग इन फाइनेंस डिपार्टमेंट ओनली। तुम्हें पीएनएल, बैलेंस शीट, है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड, IFRS सिखाया जाएगा, है ना। तुम्हें कोई प्रोडक्शन की टेक्निक नहीं सिखाएंगे कि एसी कैसे बन गया, तुम्हें ये नहीं सिखाया जाएगा। लेकिन तुम टाटा वोल्टास में जाओगे तो तुम प्रोडक्शन में जाओगे, तुम्हें सिखाया जाएगा एसी को कैसे बांधते हैं, खोलते हैं, या इसमें कैसे वायरिंग करते हैं। तो आसान ट्रेनिंग होती है क्योंकि मुझे पता होता है कि मुझे किसको क्या समझाना है। बोलो समझ गए सर? अच्छा बताओ, कैफे कॉफी डे, कैफे कॉफी डे सिंगल लाइन प्रोडक्ट हुआ या डबल लाइन प्रोडक्ट हुआ? मतलब कि दो प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट क्या बेचते हैं? कॉफी बेचते हैं मेनली, है कि नहीं बात? राइट, सिंगल प्रोडक्ट हो गया ना। तो भैया सिंगल प्रोडक्ट का कोड इसलिए मैंने बनाया, अब जाओगे तो अकेले जाएंगे नहीं सर। 2 कैफे, वेटर को बोल दिया आपने, वेटर प्लीज 2 कैफे कॉफी। टी से क्या बना सर? इजी ट्रेनिंग। सी से क्या बनेगा सर? कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश। ए से क्या बनेगा सर?
अटेंशन, नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रखोगे तो अटेंशन सही होगी। एफ से क्या बनेगा सर? बोलो, सबसे पहला पॉइंट, आप उस काम में क्या हो जाओगे? स्पेशलिस्ट हो जाओगे। ई से क्या बनेगा सर? एफिशिएंसी बढ़ेगी। एक ही काम रोज रोज करोगे तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और कॉफी के सी से क्या बनेगा सर? मिनिमम कॉस्ट, कॉस्ट आपकी क्या रहेगी सर? कम रहेगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करने का ये फायदा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन में कई बार आता है, बताओ अगर मुझे अपने काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो मुझे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए? कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए सर? फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए फॉर स्पेशलाइजेशन। क्योंकि देखो उसमें लिखी है बात, अगर आपको काम में स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन नीडेड, तो आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो करना। ये एमसीक्यू में आया, इसलिए देखो लिखा है मैंने, ये एमसीक्यू में आ चुका है कई बार। व्हेन अ कंपनी नीड स्पेशलाइजेशन इन द वर्क, विच स्ट्रक्चर शुड फॉलो, फंक्शनल और डिविजनल? तो डिविजनल मत लिख के आना, स्पेशलाइजेशन चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा सर? फंक्शनल स्ट्रक्चर। सर कुछ कमियां भी होती है इंसान में तो फायदे भी होते हैं, फायदे तो आपने जान लिए। सर फंक्शनल स्ट्रक्चर की कमी क्या है? पता क्या है? जब आप एक डिपार्टमेंट पे फोकस करते हो, आपको लगता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबसे सुपर डिपार्टमेंट होना चाहिए, तो आप पता क्या भूल जाते हो? क्या भूल जाते हो? नहीं, आप अपनी कंपनी के गोल भूल जाते हो। आपको इससे मतलब नहीं होता कंपनी को प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, आपको लग रहा है ऐड देख भाई, तू ऐड देख, तू टेक्नोलॉजी देख ऐड में, तू कैमरा देख, तू वीएफएक्स इफेक्ट देख ऐड के। समझो बात को? यानी आप इग्नोर कर देते हो कंपनी के ऑब्जेक्टिव। आप क्या इग्नोर कर देते हो भैया? बोलो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप इग्नोर कर देते हो, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को आप इग्नोर कर देते हो। बड़ा कितनी गलत बात है ना? आप भूल जाते हो मेरी कंपनी का गोल क्या है। आप सिर्फ किसको फोकस कर रहे हो? मोर वेटेज टू डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव। बात समझ में आ रही है? आप किस पे फोकस कर रहे हो सर? हाँ, डिपार्टमेंट। सर ऐसा कहा जाता है, पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। ये कहावत है कि एक फोटो हजारों शब्दों के बराबर है। शायद उसका बेस्ट एग्जांपल यही है। एक फोटो से सारी खेल खत्म कर दिया मैंने तुम्हारे। समझ पा रहे हो इस फोटो को? क्या समझ में आ रही है बताना जरा, बोलो। सर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा, और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं अबे देख नहीं सकता था कहां से आ रही ट्रेन, कैसे पटरी जाए, तू कहां से निकाल लाया यहां से। अब ये अब क्या होगा बताओ? या तो पूरी लाइन ये डिलीट करनी पड़ेगी या ये उखाड़नी पड़ेगी। यानी कि इन सब की कमी क्या है ये बताओ? इस ग्रुप की और इस ग्रुप की कमी क्या है? कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। सामने वाले को पूछना चाहिए भाई तू किस एंगल से आ रहा है, और मैं भाई किस एंगल से आ रहा हूं, और तू किस एंगल से आ रहा है कि नहीं बात? अब ये बनेंगे कैसे, है ना? और कंपनी में सबसे बड़ी ईगो यही है। मैं पूछूंगा उससे, अब इतना बड़ा आदमी हो गया वो, तो मैं पूछूंगा तुझसे, अब ये बता, तू नहीं पूछ सकती यार? तू अगर तू पूछ लेगा तो भिज जाएगा, है? तू पूछ लेगा तो बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा, बहुत बेइज्जती हो जाएगी तेरी। अरे तो मैं क्यों पूछूं? अभी तो पूछ सकता है भाई। अभी पिछले हफ्ते मैंने पूछा उससे कॉल करके कि भाई ये वाले काम के लिए कितने कितने पैसे मिलने हैं और कितना फंड अलॉट करना है। अब फिर मैं कॉल करूं? मैं तो नहीं कर रहा, बॉस अपने आप देख लेगा। ईगो प्रॉब्लम सर, ईगो प्रॉब्लम। 99% यही प्रॉब्लम है बड़ी बड़ी एमएनसीज और हर जगह पर। इसी को पता क्या बोल देते हो आप? इसी को आप बोलते हो प्रैक्टिकल भाषा में ऑफिस पॉलिटिक्स। क्या बोलते हो? ऑफिस की पॉलिटिक्स, है कि नहीं बात? राइट। जब आप कभी जाओगे तो ये नॉर्मल सी बातें होती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स आप बोलते हो। ऑफिस पॉलिटिक्स मतलब क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स टेक्निकल भाषा में मतलब है कि आप आपस में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा। फाइनेंस डिपार्टमेंट किससे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहा? मार्केटिंग से। मार्केटिंग कह रहा है 40% ऑफ का टैग लगा,
टैग लगा ग्रेट इंडियन सेल 40% ऑफ, मार्केटिंग कह रहा है लॉस हो जाएगा हमारा, है कि नहीं बात, राइट। बिजली का बिल भी ना निकलने का है, 40% ऑफ, ठीक है। मार्केटिंग कह रहा है 20% ज्यादा मत दियो। अब दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, बीच का रास्ता नहीं निकाल रहे। तो दो डिपार्टमेंट एक तो ये भूल जाते कि मेरी कंपनी का गोल क्या है। कंपनी का गोल है प्रॉफिट में आना, है ना, ये पहले बताया। मुनाफा, व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस इज इक्वल टू मुनाफा। तो डिपार्टमेंट क्या भूल गए, इधर ध्यान दो, डिपार्टमेंट क्या भूल गए कि कंपनी का गोल क्या है, मेरी कंपनी का गोल क्या है। मारुति का फाइनेंस डिपार्टमेंट, मारुति का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ये भूल गए मारुति का गोल क्या है, और दोनों एक दूसरे कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, ये रही बात। इट मेक्स इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट। अगर आप अपनी इच्छा से ही सारे काम करेंगे हर डिपार्टमेंट, तो फिर आप कहेंगे भैया मैं उससे बात नहीं करूंगा। इससे क्या होगा सर, प्रॉब्लम और, है ना, केओस ही होगा और दिक्कतें ही आएंगी। बोलो समझ गए सर, राइट। इसका मैं अगर बताऊं, तुम इन भैया को जानते हो, ठीक है। आज से कुछ साल पहले फोर्ड मोटर ने रोनाल्डो को 1200 करोड़ रुपए दिए ऐड करने के, और इसका इतना भयंकर प्रभाव पड़ा, इतना भयंकर प्रभाव पड़ा कि दूसरे डिपार्टमेंट ने स्ट्राइक कर दी। इतनी गाड़ियां ना बिक रही, तू 1200 करोड़ रुपए दिया रोनाल्डो को, प्रॉफिट में कहां से आई कंपनी। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट लगता है रोनाल्डो से ऐड करा दो भैया, रोनाल्डो से ऐड करा दो, रोनाल्डो से, है कि नहीं बात, राइट। आग लगा दो मॉल में, भाई रोनाल्डो से ऐड कराएंगे, रोनाल्डो से। लेकिन वो क्या नहीं पूछ रहे कि भाई रोनाल्डो 1200 करोड़ रुपए देगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट से बात तो कर ले, 1200 करोड़ रुपए है देने के लिए उसको, सिर्फ कार के ऐड कराने के लिए 1200 करोड़ रुपए है। 1200 करोड़, कितनी गाड़ियां बन जाएंगी 1200 करोड़ में, वो भी आज से कई साल पहले। इस चक्कर में स्ट्राइक हो गई, बड़ी बेइज्जती हुई किसकी सर, फोर्ड मोटर की। ये बेस्ट एग्जांपल है दुनिया का क्या, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट का। लिखो फोर्ड मोटर, एग्जाम में भी ये लिखना है, फोर्ड मोटर्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट हायर रोनाल्डो फॉर इंडियन करेंसी 1200 करोड़ रुपीस। सर इससे असर क्या हुआ, अदर डिपार्टमेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट द डील, उन्होंने इस डील को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड वेंट ऑन स्ट्राइक कर दी उन्होंने। भैया ये नहीं चौलवे, 1200 करोड़ रुपए दे दोगे, है ना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कह रहे इतना तो बेच भी नहीं पाएंगे हम, इतना प्रोडक्शन आगे बिकेगा नहीं, कंपनी लॉस में चली जाएगी भैया। यहां हम सोचे 10-15 करोड़ रुपए देके किसी फिल्म स्टार को ऐड कराओ, तुम 1200 करोड़ रुपए दे रहे हो यार। तो कई बार दूसरे डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट की इन हरकतों को नहीं मानते, समझ में बात को, ठीक है। तुम्हारे हिसाब से तो रोनाल्डो से करा दो ऐड, और 2-4 मैसी भी ले लो साथ में, सीधा 5000 करोड़ का कर दो पैकेज, तो इतना प्रोडक्ट भी तो बिके, प्रॉफिट भी तो आए। अगली दिक्कत क्या है सर, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, समझ गए ना, राइट। इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है, एक दूसरे। सेल्स डिपार्टमेंट क्या कह रहा है सर, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है इंसिस्टिंग ए कंज्यूमर फ्रेंडली डिजाइन विच कॉस्ट प्रोडक्शन। अब जैसे भैया किसी ने ये तो सोचा होगा, क्या सर, सर ये वाला जी हाँ, अब लुमिनस डिजाइनर फैंस में एलईडी, हर कोने में हवा भी, रोशनी भी। लुमिनस फैंस, फैन हो जाओगे। भैया बता दो, अब बताओ,
फैन में बेटा कुछ पूछा लड़की से, फैन में एलईडी। अब बताओ, मैंने लड़की से भी पूछा फैन में एलईडी हो सकती है? अब किसी ने सोचा तो होगा ना। ये दिक्कत है, पता है किसकी? मार्केटिंग डिपार्टमेंट चाहता है हर एक बंदा दुनिया में क्या हो जाए, आलसी हो जाए, आलसी। मतलब मैं उठ के यहां से बटन भी ना दबाऊं फैन का, अरे रिमोट से दबा दे। समझ में आ रही ना बात? एलेक्सा कर दे, एलेक्सा पोछा लगा दे, एलेक्सा लग रही पोछा लगाने में 5 करोड़ लूंगी, कौन है मच्छर काटते हैं मुझे, है कि नहीं बात? तो एलेक्सा से पोछा लगवा लो अब तुम, है कि नहीं बात? एलेक्सा पोछा लगा देगी अब। लेकिन हम आलसी होना चाहते हैं। हम क्यों आलसी होना चाहते हैं? कि सारे काम टेक्नोलॉजी से हो जाए, हमें हिलना ना पड़ जाए, है कि नहीं बात? मतलब डंबल खुद आके मेरे हाथों को यूं करते, मुझे डंबल उठाने ना पड़ जाए भैया, ठीक है? खुद ही बॉडी बन जाए मेरी। समझ रहे बात को? यही इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट है। सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है भाई कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बना दे, ऐसा डिजाइन बना दे कि भैया लाइट भी किसमें हो जाए, फैन में चल जाए, फैन में एलईडी भी लग जाए, लाइट भी लग जाए। अब इससे क्या होगा? प्रोडक्शन में डिफिकल्टी होगी। और फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है भाई इसे बेचेगा कौन? नहीं खरीदा। ग्राहक कह रहा है मेरे को ये ट्यूबलाइट ठीक लगती है, फैन में एलईडी नहीं चाहिए, लाइट घूम रही गोल गोल, सर में दर्द होगा मेरे, ठीक है? और फिर इसका डिजाइन बनाना सोचना कितना मुश्किल है, टेक्नोलॉजी लगाना उसमें। तो ये होता है इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट। कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मार्केटिंग डिपार्टमेंट बस ऑर्डर देता है, भाई कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन बना, कस्टमर फ्रेंडली। भाई कस्टमर फ्रेंडली डिजाइन कैसे बनाऊं, मुझे आना भी तो चाहिए, टेक्नोलॉजी भी तो चाहिए, फिर उसको डेवलप भी तो करना पड़ेगा। इस वजह से 2 डिपार्टमेंट लड़ाई हो जाती है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है तू निकल, चल तू निकल। पंखे में 3 है ना, वो लग रहे हैं, 3 पंखड़ी है ना, किसी में 4 भी आती है, किसी में 5 भी आती है। अब तू उसमें क्या लगवा दे? हाँ, अब तुम क्या लगो, पंखे में एसी लग जाए तो क्या मजा आ जाए। एसी के पंखे से निकल लिया भाई, हाथ जोड़ ले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भाई पंखे में एसी, अभी एलईडी रखी मिटता, तू क्या कर रहा है? पंखे में एसी। अब तुमने तो बोल दिया कि ग्राहक को मैं क्या बोलूंगा, एक ऐसा पंखा ले ले जिसमें क्या मिलेगा, एसी लगाने की जरूरत ही नहीं है। कौन परेशान होगा? प्रोडक्शन डिफिकल्टी बढ़ेंगी। ये लड़ाई हो गई नहीं होगी, समझ गए? आखिरी लड़ाई इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी कैसे भैया? अब तुम हो भैया कौन से? बहुत ही शांत स्वभाव के डेविड वॉच कमसिन, केट वॉच गोर्डन, मुंशी जी हो तुम। हम कौन है भैया? मुंशी। पुराने जमाने में मुंशी तो बोला जाएगा, सीए भी क्या है, मुंशी क्या? हमें आती है मुंशीगिरी करना। हमसे आप पूछो भैया डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है, ठीक है, स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करना है, गुडविल का कैसे वैल्यूएशन करना है, ठीक है, प्रोडक्ट बेस पे शेयर कैसे बांटने हैं, एंट्री क्या डालनी है, 4 फीचर, हमसे ये सारी चीजें पूछो ना। अकाउंट की चीजें पूछो, आप मुझसे इकोनॉमिक्स पूछो भैया, है कि नहीं बात? डिमांड, सप्लाई, कॉम्पिटिटिव मार्केट, नेशनल इनकम, ये चीजें पूछो ना भाई हमसे पूछो। एकदम से हमसे सवाल पूछो ना साइंस के, बताओ जरा पंखे में कौन सा वो लग रहा है, कौन सी वायर लग रही है, बता दो क्या? तो एयर की स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड क्या होती है, बताइए जरा। अरे हम कहेंगे भैया इस चक्कर में तो साइंस छोड़ के कहा है, कॉमर्स में है। अब तो ये सवाल पूछ रहा है, सेम काम। अब तुम भैया मुंशी डिपार्टमेंट में तुम कहां बैठे हो? अब तुम भैया शीशे में बैठे हो, टाई वाई लगा के आराम से बढ़िया तरीके से, है ना, फॉर्मल ड्रेस पहन के, लैपटॉप खुला हुआ है, ले भैया दनादन क्या कर रहे हो? अकाउंटिंग काम कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो। तुम एकदम से कॉल आ गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के मार्केटिंग करने गए थे, ठीक है, पप्पू ढाबा पे खाना खा लिया, सबका पप्पू बन गया, सबको फूड पॉइजनिंग हो गई, सब बीमार हो गए। कितने जने थे? 10 जने थे। ले और खा ले पप्पू पे, पप्पू ने सबका पप्पू बना दिया। अब पप्पू ढाबा पे खाना खाने की वजह से 10 सेल्समैन बीमार हो गए, तो तुम लोगों को बोला अकाउंटेंट्स, मुंशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कि तुम आगे क्या कर लो, मार्केटिंग करो। कर पाओगे क्या? मैं तुमसे कहता ये बेच ले पेन, ले पेन, बेचू पेन, बिल्कुल ना बेच पाएगी। क्यों? एक्सपीरियंस नहीं है ना। क्योंकि सर इस पेन से मुझसे बैलेंस शीट बनवा लो, स्टेटमेंट बनवा लो कंपनी की, लेकिन इस पेन को बेचने को तो बड़ा दिक्कत है सर, क्योंकि मैं तो कभी बेची नहीं, कभी बेचना छोड़ो, मैं सोचा नहीं सपने में किसी ने पेन बेचने जाऊंगी। तो तुम बेच लो क्या? तुम क्या? मैं भी नहीं बेच सकता। मैं तो कहूंगा मेरा काम क्या, पढ़वाने का पढ़वा लो, बुलवा लो, 100 लोगों के सामने बोल दूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम मुझसे क्या तो बेच दो, तो मैं बोले छोड़ू, बेच दे, बोले छोड़ू मैं। इसे क्या बोलते हैं? इनफ्लेक्सिबिलिटी, है ना। रीजन, अ पर्सन डूइंग द फाइनेंस डिपार्टमेंट वर्क
स्पेशलिस्ट ओनली इन, बोलो जल्दी, फाइनेंस वर्क. ही डज नॉट हैव द एक्सपीरियंस और वर्किंग कंडीशन ऑफ मार्केटिंग. तो मार्केटिंग काम नहीं कर पाएगा, चाहे पप्पू ढाबा पे खा के कितने सारे लोग बीमार हो जाए. आप एक दिन के लिए भी मार्केटिंग का काम नहीं कर सकते. आप सेम मार्केटिंग वाला बना देगा पीएल बैलेंस शीट आके, पूरा अकाउंट डिपार्टमेंट छुट्टी ले ली तो बना देगा वो? नहीं ना. ये होता है इनफ्लेक्सिबिलिटी. ये लिखी बात. फाइनेंस मैनेजर डू नॉट गेट ट्रेनिंग ऑफ टॉप मैनेजमेंट पोजीशन बिकॉज दे आर अनेबल टू गैदर एक्सपीरियंस ऑफ डाइवर्सिफाई एरिया. फाइनेंस मैनेजर कभी भी मार्केटिंग का या सीईओ का काम नहीं कर पाएगा. मार्केटिंग मैनेजर का काम नहीं कर सकता. राइट तो ये क्या हो गया सर मेरी, जल्दी बताओ. इनफ्लेक्सिबिलिटी, डिमेरिट. कितने डिमेरिट पढ़े हमने सर? 4. तो गाना पता क्या गाएंगे? आ जा तो 4 आई 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 आ जा. सर पहले आई से क्या बनेगा सर? सारे लाइन से है. इग्नोर इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव. दूसरा ऐसे क्या बनेगा? इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं होता. तीसरा ऐसे क्या बनेगा? इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट. आखिरी ऐसे क्या बनेगा? इनफ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है. अच्छा बताओ, एप्पल एप्पल कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करती होगी? One of the keys to Apple is Apple's an incredibly collaborative company. You know how many committees we have at Apple? No, 0. We have no committees. no committees. We are organized like a startup. One person's in charge of iPhone OS software. One person's in charge of Mac hardware. One person's in charge of iPhone hardware engineering. Another person's in charge of worldwide marketing. Another person's in charge of operations. We're organized like a startup. We're the biggest startup on the planet. And we all meet for 3 hours once a week, and we talk about everything we're doing, the whole business. And there's tremendous teamwork at the top of the company, which filters down to tremendous teamwork throughout the company. And teamwork is dependent on trusting the other folks to come through with their part without watching them all the time, but trusting that they're going to come through with their parts. And that's what we do really well. And we're great at figuring out how to divide things up into these great teams that we have and all work on the same thing, touch bases frequently, and bring it all together into a product. We do that really well. तो एक पर्सन आईफोन का इंचार्ज है, एक पर्सन आईपॉड, पहले आईपॉड चलते थे ना, आईपॉड का इंचार्ज है, एक पर्सन दूसरे मैक है ना आईपैड का इंचार्ज है. यानी कि फिर हम महीने में क्या कर लेते हैं, महीने में हफ्ते में 1-3 घंटे 2-3 घंटे की मीटिंग रख लेते हैं. यानी एप्पल आईफोन भी अगर तुम देखो तो किस स्ट्रक्चर पे चल रहा है सर? फंक्शनल स्ट्रक्चर पे चल रहा है. यानी स्टीव जॉब ने भी क्या कर रखा है? स्टीव जॉब ने भी अपने क्या बना रखा है? बोलो, अलग अलग डिपार्टमेंट. आईपॉड डिपार्टमेंट अलग है, मैक डिपार्टमेंट अलग है, आईफोन डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग का अलग है. उन्होंने डिपार्टमेंट बना रखे ना, और फिर तीनों को मिलाकर मीटिंग कर लेते हैं, भैया हफ्ते में हुआ क्या है. तो हम बिल्कुल ऐसे काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए काम करते हैं. यानी कि इंडिया की टॉप, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी, फोन कंपनी भी किससे चल रही है सर? फंक्शनल, यानी स्ट्रक्चर बना के चल रही है. और उनके प्रोडक्ट के भी अपने स्ट्रक्चर, आईपॉड का अलग स्ट्रक्चर है और फोन का क्या है सर? अलग स्ट्रक्चर है. राइट. इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब यह हुआ कि हर एक कंपनी अगर सिंगल लाइन प्रोडक्ट बना रही है तो चाहे वो बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, वो क्या बनाते हैं सर? सिंगल लाइन प्रोडक्ट. तुम्हारी तरह सिंगल जो एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं. हाँ तो वो है तो टेक्नोलॉजी लेट था ना, तो सिंगल मानते हैं. वैसे बाटा है, अब बाटा लेदर प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, अब चाहे वो जूते बनाए चप्पल बनाए तो उन्हें सिंगल लाइन माना जाएगा. डबल प्रोडक्ट जब मानेंगे जब एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल उलट हो, है ना, बिल्कुल अलग हो, वो डबल होगा. डुअल लाइन प्रोडक्ट हो गए. ठीक है सर. आखिरी बस 2 कार्टून प्रेजेंटेशन, सिर्फ 2.
डायरेक्टर वो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है सर फॉर आवर स्टार्टअप, फॉर आवर स्टार्टअप वी नीड 1 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 1 फाइनेंस and 1 HR and 1 सेल्स। हमें 4 ग्रुप चाहिए या 4 फंक्शन चाहिए। वी नीड दीज फंक्शंस। ठीक है, अब ये कंपनी का सीईओ है, ये कह रहा ओके सर आई विल ड्रॉ स्ट्रक्चर I will draw structure of the company। बताओ ये बातें क्या दिखाती हैं, बोलो रे पुष्पा। हाँ सर ये दिखाती है एक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर तो बना रहा है ना। ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है ना, यहां लिख लो मारुति डायरेक्टर, तो मारुति के लिखने से पता लगेगा। एंड इट इज ऑल्सो फंक्शनल स्ट्रक्चर। भाई एक प्रोडक्शन एक चाहिए तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में तो एक चाहिएगा बस, यही तो पढ़ा हमने आज। ठीक है, इसी में चेंज कर रहा हूं, नोट कर लिया ना। सर ये है हमारा सीईओ कंपनी, कह रहा है सर आई हैव लेदर शू बिजनेस। लेदर शूज का बिजनेस सर, एंड I will make leather jacket and bag। Suggest me the structure। अब तुम हो भैया MBA या CA है ना, अब बताओ ये बेचारे बोलो क्या बोलेगा, कौन सा स्ट्रक्चर करना चाहिए ने, बताओ भैया तुमसे पूछ रहा है कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करे, फंक्शनल वाला है डिविजनल वाला, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट वाला है सिंगल प्रोडक्ट वाला। अरे नशेडियो नशा करके आते हो क्या भाई, लेदर प्रोडक्ट तू बना रहा है उसी में तू लेदर का एक्सटेंशन कर रहा है, तो हमारी सलाह क्या रहेगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर फॉलो कर। इसे अलग अलग प्रोडक्ट मान, एक ही प्रोडक्ट मान, क्योंकि तेरा रॉ मटेरियल क्या है, एक है। अबे तुम लेदर ला रहे हो, उससे काले शूज बना रहे हो, सफेद शूज बना रहे हो, और उससे तुमने लेदर बैग बना लिया, तुम्हारा एक प्रोडक्ट लाइन तो एक ही है ना लेदर, तो उससे हम क्या बोलेंगे सर, क्यों टाइम खोटी कर रहा है। लिख भाई, यू हैव 1 लेदर प्रोडक्ट लाइन। Therefore, you need functional structure। ठीक है, तो सर हमने इस कार्टून प्रेजेंटेशन से क्या जाना, स्ट्रक्चर सिंगल डिपार्टमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर बोलता है सिंगल डिपार्टमेंट, ओनली वन डिपार्टमेंट फॉर ईच फंक्शन। और फंक्शन क्या है मेरे, काम क्या होते हैं मेरी कंपनी में, फाइनेंस का काम, प्रोडक्शन का काम, मार्केटिंग का काम, तो एक काम के लिए एक डिपार्टमेंट है, सिंगल डिपार्टमेंट फॉर ईच फंक्शन, है ना। अलग अलग डबल डबल प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ एक क्वेश्चन है होमवर्क, ध्यान से करेंगे, एक ही दे रहा हूं। अब ये मत कहना भैया किया नहीं। क्वेश्चन 16 केस स्टडी का, बोलो समझ गए सर? समझ गए? टाटा बाय बाय, टेक केयर।